السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انشاءاللہ وبرکاتہ۔ تعالی ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بعد میں بھی سن سکیں بغیر کسی ڈھونڈنے کے یا وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، انشاءاللہ تعالی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتنی چیزیں ہم نے دیکھی تھی؟ ہاں جی، 12 چیزیں دیکھی تھی۔ کیا چین بنی تھی؟ نمبر 1، اللہ کا کیا تعلق ہے؟ کیوں پڑھا ہم نے اللہ کی ذات کو؟ اللہ خالق ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کیوں پڑھا؟ مخلوق ہے۔ اور کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ انسان کی لائف کی ہم نے 4 حقیقتیں دیکھی تھی۔ 4 بیسک فیکٹس کیا ہیں؟ نہیں تھا، ہے، نہیں ہوگا، پھر ہوگا۔ حیات موت، حیات موت جب ہم بات کرتے ہیں، اور نہیں تھا، ہے، نہیں ہوگا، ہوگا، اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ دونوں میں بات تو ایک ہی ہے۔ ریئلائزیشن نہیں ہوتی اپنی لینگویج میں نا، جتنا ہم سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے، لیکن ٹرمز اس کے لیے یہی ہیں: موت، زندگی، موت، زندگی، باس بعد الموت، ہمیشہ کی زندگی۔ انسان ان 4 مراحل میں سے ایک سے گزر چکا، دوسرے سے گزر رہا ہے، 2 مراحل آنے والے۔ تو یہ 4 مراحل انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انسان کی کیا پوزیشن ہے اس زندگی میں؟ انسان کو اللہ نے بھیجا یہاں پر کس مقصد کے لیے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وحی۔ وحی کی کیا حیثیت ہے؟ وحی کیوں آئی؟ ہاں جی، اللہ نے انسان کو عقل کے دہانے پر نہیں چھوڑا، اور اس کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ کس پر آئی؟ ہر ایک انسان پر آتی ہے؟ نہیں، انبیاء پر۔ آخری وحی کس پر آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ ایک وحی ہے مطلوع ہے۔ مطلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری کیا ہے؟ غیر مطلوع کون سی ہے وحی؟ حدیث رسول غیر مطلوع ہے۔ اور وہی مطلوع کون سی ہے؟ قرآن مجید، قرآن حکیم۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ انسان کے لیے اللہ کا فیصلہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دہرائیں سے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر دہرائیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کو اس کا تقوی اور اس کا فجور الہام کر دیا گیا۔ ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان کو اس کی اچھائی برائی الہام کر دی گئی۔ تقوی کا ترجمہ اچھائی کرنا درست ہے، اور فجور کا ترجمہ صرف برائی کرنا درست ہے۔ تو فجور کی ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، اس سے آپ فجور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، زنا کرنا جرم ہے نا، خواہ وہ کسی بھی مقام پر ہو، لیکن بڑا جرم ہو جاتا ہے اگر اپنی ماں یا بہن کے ساتھ کیا جائے۔
اور بڑا جرم ہے اگر ہمسائے کے ساتھ کیا جائے، اور بہت بڑا جرم ہے اگر مسجد میں کیا جائے، اور یہ بڑا جرم جو ہے یہ فجور کہلاتا ہے. یعنی ایک جو برائی ہے وہ اپنے ماحول کی وجہ سے اور پھر رشتے کی یا تعلق کی نوعیت کی وجہ سے جو شدید ترین یا جو انتہائی مقام پر پہنچتی ہے اس کو فجور کہتے ہیں. تو فجور اور تقوی. اب تھوڑا سا فجور کی بات سمجھ آئی؟ برائی کی انتہا ہے نا یہ. اچھا، تقوی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ لفظی طور پر روٹ کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا. ٹھیک ہے، بچنا کس چیز سے؟ فجور سے. فجور سے بچنا. فجور کہاں لے جاتا ہے؟ آگ میں. تو آگ سے بچنا. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ فجور. اس سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا تقوی ہے. ہم نے تقوی اور فجور کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ باتیں دیکھی تھی. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں جی بولیں، سارے بولیں. حسن نیت اور خیر کا ارادہ. اور فجور کے لیے بری نیت اور برا ارادہ. نیت بری کیسے ہوتی ہے؟ نیت بری ہوتی ہے انسان کی کیسے؟ 2 خاص باتیں ہیں بری نیت کی، 2 اس کے خاص فیز ہیں. ایک تو یہ کہ برا کام کرنے کی انسان نیت کرے، یہ بھی بری نیت ہے. اور ایک یہ کہ انسان خیر کی نیت نہ کر سکے. جس وقت انسان خیر کو چھوڑتا ہے نا، بھلائی کو، اس وقت ایک انسان خیر کو چھوڑ کر بری نیت کر رہا ہوتا ہے. بری ہے نا نیت. خیر کو چھوڑنا بذات خود بری نیت. ایک انسان جو نیکی کا ارادہ نہیں کر پاتا وہ دراصل برائی کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ میں نے برائی کا ارادہ کیا. وہ صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے یہ نیکی ممکن نہیں ہوگی، اس لیے نیکی کا ارادہ کرنے کا فائدہ نہیں، لہذا نیکی کا ارادہ نہ کروں. دراصل وہ اپنے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا. یہ بھی فجور ہے. برائی کا ارادہ، بری نیت، برا ارادہ. مثلا دیکھیں، جھوٹ چھوٹا ہے، کبیرہ گناہ ہے. ابھی ہمیں نا اس کا سٹیٹس نہیں پتا کہ کون سا چھوٹا گناہ ہے، کون سا بڑا گناہ ہے. فجور جو ہے برائی کی پیک کو کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آلموسٹ سارے اعمال ہی ایک انسان کی دلی کیفیت، حالات و واقعات کی وجہ سے فجور ہو جاتے ہیں. ایک انسان سے غلطی سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، غلطی سے ہونے والی برائی معصیت ہے، نافرمانی. نافرمانی وہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ سرکشی شامل ہو جاتی ہے تو وہی برائی فجور کے زمرے میں آ جاتی. مثلا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا چاہے یہ فجور میں آتا ہے. اچھا کیسے بڑا ہو گیا یہ جھوٹ؟ جھوٹ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اس کا مطلب اس وقت اسے احساس بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن اسے اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں. اس کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں نا تو فجور کب واقع ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اٹھ جاتا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جس وقت انسان کے دل میں. میں نے فجور کی اصل حقیقت واضح کی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. دیکھیں آپ اس کو یوں لے لیجئے، تقوی اللہ کا خوف ہے اور فجور اللہ سے بے خوف ہو کر کوئی کام کرنا ہے. اچھا کسی ٹرم کو جس وقت ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا، اس کو ہر اینگل سے ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. جیسے ہم نے دیکھا تقوی کو کہ اس کا بنیادی طور پر تو مطلب ہے بچنا، لیکن اس کا مطلب اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے. اس طرح فجور کی میں نے ٹرم واضح کی آپ کے سامنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے بے خوف ہو کر جب کام کرتا ہے تو وہ فجور کے زمرے میں آتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
اسے اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی، تقوی اور فجور، اسے اللہ کا خوف اور بے خوفی کے کام الہام کر دیے۔ انسان کو پتہ لگتا ہے خوف کے تحت کون سے کام ہوتے ہیں اور بے خوفی کے ساتھ کون سے ہوتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ کیا تھا؟ اب دیکھیے الہام کہاں ہوتا ہے؟ اندر۔ تقوی کے کام کون انجام دیتا ہے؟ ایک انسان خود۔ پھر ایک انسان برے کاموں سے بچتا ہے، فجور سے بچتا ہے، کون کرتا ہے؟ خود۔ لیکن خود اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ دعوت۔ دعوت دعوت کیا ہے؟ بولیں، سب بولیں۔ تقوی کی ترغیب اور عذاب کا ڈراوا۔ اچھا، تقوی کی ترغیب دینا کیا ہے؟ دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات۔ اچھا، اور عذاب کا ڈراوا کیا ہے؟ دراصل دنیا کی بدبختی اور قبر اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ ٹھیک ہے، چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ علم۔ علم کن سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، کیا ان تینوں کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے؟ کوئی آیت سنائے گا آپ میں سے؟ ہاں جی۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ہر ایک کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو علم کے جتنے سورسز ہیں، ان سورسز کے حوالے سے انسان کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ 7واں پوائنٹ کیا تھا؟ علم کے حصول کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ان پوائنٹس میں آپ کو کوئی منطقی لاجیکل سیکوینس مل رہا ہے؟ ربط ملتا ہے؟ ہاں جی۔ علم کے حصول کے لیے عقل کا استعمال ہے، تو عقل کے لیے ہم نے دیکھا تھا کیا کیا اس کے طریقے استعمال کے؟ اونچی بولیں۔ امید، بصیرت، اعتبار۔ ٹھیک ہے، ان 6 کاموں کے توسط سے انسان کو کیا چیز ملتی ہے؟ حکمت۔ آپ کو چاہیے وزڈم؟ وزڈم جس کو ملا رب کیا کہتا ہے؟ ہاں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ خیر کثیر چاہیے؟ دنیا کی زندگی میں خیر کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جب اچھائی کی نیت کرتا ہے نا، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ ایک انسان جب برائی کی نیت کرتا ہے تو حکمت سے خالی ہوتا ہے، نہ غور و فکر، نہ شعور ہے، نہ تدبر کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر برا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کانسیپٹس کے بعد علم کی ضرورت ہے ان تک رسائی کے لیے، اور عقل کا استعمال ہے، تب جا کے اسلام قبول کر سکتے ہیں، تب جا کے اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام اس کے بغیر سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ اسلام کا روٹ کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ 2 اس کے میننگز ہیں، کیا کیا؟ سپردگی اور دوسری، اور اس کے علاوہ سلامتی۔ انسان نہ دنیا میں سلامت رہ سکتا ہے، نہ آخرت میں سلامت رہ سکتا ہے اللہ کے حوالے کیے بغیر۔ کس کس چیز کو؟ اپنے سماعت، اپنی بصارت اور اپنے قلب کے معاملات کو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد انسان پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اسلام اندر کی تبدیلی مانگتا ہے، اندر کی تبدیلی، فقط ظاہری تبدیلی نہیں۔ اور اندر کی تبدیلی 2 طرح سے آتی ہے، تقوی یا فجور، جو فطری طور پر اللہ نے الہام کر رکھی ہیں۔ اچھا، تقوی اور فجور کے حوالے سے ہم نے یہیں پہ اسلام کے حوالے سے
3 कैफियत देखी थी नफ्स इंसानी की। वो कौन कौन सी कैफियत हैं? एक इंसान जब अल्लाह से डरता है तो उसका नफ्स मुतमईन होता है। एक इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसका नफ्स सरकश होता है और बुराई का हुक्म देता है। एक इंसान जब बुराई कर गुजरता है, दूसरी सूरत भी सामने आती है, नफ्स मलामत करता है। तो नफ्स की कितनी कैफियत हो गई? 3। कौन कौन सी? नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। 10वां पॉइंट है ईमान। ईमान दरअसल किस चीज की चेंज का नाम है? पहली चीज हमने इसमें 5 पॉइंट्स देखे थे। किस चीज की चेंज का नाम है? फिक्र के बदल जाने का नाम है। इंसान की फिक्र नहीं बदलती तो ईमान नहीं आ सकता। फिक्र की तब्दीली। फिक्र किसके बारे में? सबसे पहले किसके बारे में? पीछे चले जाएं पहले पॉइंट पे, अल्लाह की जात के बारे में फिक्र। इसको क्या कहते हैं? अल्लाह पर ईमान। ठीक है, अल्लाह के बारे में सोचेंगे, फिक्र का एक ढांचा बनेगा, वो अल्लाह पर ईमान होगा। अगर हम अल्लाह के फरिश्तों के बारे में सोचेंगे और सही इल्म के मुताबिक सोचेंगे, फिर हमारा जो फिक्री ढांचा बनेगा वो होगा फरिश्तों पर ईमान। रसूलों के बारे में सही इल्म हासिल करेंगे और रसूलों के बारे में हमारी माइंड सेटिंग होगी, जिस तरह से होगी उसको कहेंगे रसूलों पर ईमान। ये माइंड सेटिंग अपनी चाहत, अपनी मर्जी की नहीं, जो रब ने बताया। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को इंफॉर्मेशन तो होती है, उसको मालूमात तो होती है कि अल्लाह के रसूल हैं, आए हैं, इंसानों की इस्लाह के लिए आए, लेकिन ये उसकी फिक्र नहीं है, इंफॉर्मेशन। क्या फिक्र और इंफॉर्मेशन में कोई फर्क होता है? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इत्तिला, इत्तिला या मालूमात, इंफॉर्मेशन, मालूमात। तो मालूमात में और फिक्र में क्या फर्क होता है? कौन सी मालूमात है जो इंसान की थॉट बन जाती? थॉट कैसे बनती है? कोई इसके दरमियान कोई काम होता है? हाँ जी, गौर फिक्र होता है। और क्या होता है? हाँ जी, मालूमात। एक चीज इंसान के इंफॉर्मेशन में आई ना, मसलन किसी ने बाहर बैनर पढ़ा, एडवांस डिप्लोमा इन इस्लामिक एजुकेशन में दाखिले जारी हैं, ठीक है, मालूमात मिल गई, वो गुजर गया, क्या ये उसकी फिक्र बन जाएगी? कैसे बनेगी? वो कहता है मैं क्या सोचूं, मुझे क्या पता ये क्या है। फिर वो क्या काम करेगा? मालूमात लेगा, मजीद उसके बारे में जानेगा, अच्छा क्या है इसमें, क्या पढ़ाया जाता है, कितने अरसे का कोर्स है। फिर इसी तरह से यानी एक चीज के बारे में पता चला, उसके बाद उसने उसके ऊपर खुद से परेशानी उठाई सोच के, फिर राइट सोर्स से उसका इल्म हासिल किया, फिर उसने सोचा कि हाँ ये मेरी जरूरत है। इस तरह से ग्रेजुअली एक इंफॉर्मेशन इंसान की थॉट बन जाती है। तो इंफॉर्मेशन जो है थॉट बनने के लिए इल्म की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इल्म के मुताबिक गौर करने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है। दूसरी चीज है विजदान। विजदान, इंट्यूशन कहते हैं इसे। जिस चीज पर इंसान बहुत गौर फिक्र करता है, उसके ऐसे पहलू खुलने शुरू हो जाते हैं जो आम हालात में नहीं खुलते। ऐसा नहीं होता कि जिस पर इंसान सोचता रहे वो कहता है ओह अचानक मेरे जहन में फलां ख्याल आ गया। ये अचानक नहीं होता, पीछे माइंड मसरूफ होता है। तो ईमान जो है कॉन्टिन्यूस सोच का नाम है, फिक्र का नाम है। कॉन्टिन्यूस इल्म हासिल करने से ईमान मिलता है, गौर फिक्र करने से मिलता है। और एक इंसान अपने फिक्र की इस स्टेज पे पहुंचता है जहां से उसके जहन की गिरहें खुलनी शुरू हो जाती हैं, तो
تب ایمان ملتا ہے، یہ وجدان ہے۔ اسی طرح سے ایمان ملتا ہے اجتماعیت سے۔ اجتماعیت سے کیسے ملتا ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کون سا ہے؟ الصلاۃ، صلاۃ نا۔ تو صلاۃ کے لیے پابندی کیا ہے؟ مردوں کے لیے 5 وقت جماعت کے ساتھ پابندی ہے، لیکن دیکھیں آپ خواتین اگرچہ گھروں میں ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، ایک اجتماعی معاملہ بہرحال یہ ہے کیونکہ ہر صلاۃ کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اجتماعی فعل ہو گیا نا۔ ایمان اجتماعیت سے ملتا ہے۔ رمضان کے روزے الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، 1 مہینہ ہے، سارا ماحول پریپیئر ہوتا ہے سب کے سب۔ اب سوچئے اگر سال میں یہی روزے 12 مہینوں میں رکھنے ہوتے تو ہم دورہ قرآن کر سکتے تھے؟ دورہ قرآن بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو اجتماعیت کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ روزے اکٹھے رکھو، نماز کا وقت ایک ہے، پھر اسی طرح سے حج کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ حج کے دن ایسے ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے تو معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے۔ دنوں کے نام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حج کے دنوں کو 2 طرح کے نام دیے جاتے ہیں، ایک ایام معلومات اور دوسرے ایام تشریق۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس کے آگے نام بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اجتماعی امور کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ جتنا زیادہ انسان اجتماعی زندگی اختیار کرتا ہے اتنا ہی اس کو ایمان ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے ایک شخص اگر اکیلا مسلمان ہے اور اس کے ارد گرد کا پورا ماحول بالکل مختلف ہے تو کیا وہ اپنے ایمان پہ برقرار رہ سکتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ تجربہ کر چکے ہیں اپنے اپنے گھروں میں کہ جب انہوں نے گھر والوں کو دین کی دعوت نہیں دی تو اب ایمان پہ برقرار رہنا مشکل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح والا ایمان نہیں تھا، کہ جس میں ایمان کے ساتھ دوسروں کی فکر ہی لاحق نہیں ہوئی۔ تو ایمان اجتماعیت اختیار کرنے کا نام ہے، اور اجتماعیت اس لحاظ سے بھی علم سیکھنے کے لحاظ سے، اعمال کرنے کے لحاظ سے اور دعوت دینے کے لحاظ سے، پورے ماحول کی درستگی کے لیے۔ اسی طرح سے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری مادی زندگی بھی بدل جائے۔ انر چینج تو ہے، اسلام انر چینج مانگتا ہے نا، ایمان جو ہے وہ ٹوٹل چینج مانگتا ہے، اندر بھی باہر بھی، پوری لائف بدل جائے، ٹوٹل لائف سٹائل چینج ہو جائے، انسان کی سوچ، انسان کے احساسات، اس کے جذبے لائن اپ ہو جائیں، اور ایک انسان کی گفتگو، اس کی سماعت، اس کی بصارت، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے، پھر اسی طرح سے ایک انسان کا خلق، ایک انسان کی ڈیلنگز، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ پھر ایک انسان کماتا کیسے ہے، خرچ کیسے کرتا ہے، معاشرتی زندگی، معاشی، سیاسی، قانونی، لائف کا ہر پہلو چینج ہو جائے تو تب ایک انسان ایمان حاصل کرتا ہے۔ ایمان کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے، پوری زندگی کی ایفرٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ رب کی یاد سے غافل ہوں، آپ کو لگے گا ایمان لٹ گیا ایمان۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو حسن، خوبی سے انجام دینا۔ کسی کام کو احسن طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ چاہتی ہیں پورے کا پورا اقبال ٹاؤن جو ہے وہ اسلام کے رنگ میں رنگا جائے۔ اب آپ ایک ایمانی کام کرنا چاہتی ہیں، ایمانی عمل ہے نا، اس کے لیے آپ کا دل یہ ہے کہ میں احسان کی روش پر قائم ہو جاؤں، زیادہ اچھے طریقے سے کام کروں۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟
ہاں جی، کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہم جو پڑھ چکے ہیں نا، ہم انہی ٹرمز میں بات کریں گے. ہاں جی، امید اور خوف. جب بھی کوئی کام کرنا ہے امید اور خوف کے بین بین. وہ تو ویز ہے نا، پلاننگ کرنی ہے یا باقی جو بھی ہے، لیکن ایک ہے ایک کام کو شروع کرتے ہوئے، ایک کام کو انجام دیتے ہوئے، ایک کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ایک انسان کی ذہنی قلبی کیفیت کیسی رہے. ذہنی اور قلبی کیفیت ایسے کہ اللہ سے امید بھی باندھے رکھے. امید باندھنے والا کیا کرتا ہے؟ نظریں رب پر رکھتا ہے اور اللہ سے مدد کی درخواست کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. اور امید باندھنے والا کیا کرتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. دو باتیں سامنے رکھیں، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یا تو آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ نظریں لگا دیں رب پر. آپ جب رب کی طرف نظریں لگاتے ہیں تو آپ بہترین عبادت کر رہے ہوتے ہیں. بہترین عبادت کا حسن یہی ہے. کیا دعوت دینا عبادت ہے؟ الحمدللہ. اور اگر آپ نظریں نہیں لگا پا رہے تو اللہ کی نظروں کو ضرور محسوس کرنا شروع کر دیں. اچھا آپ دیکھیں، جب انسان کسی پر نظریں لگاتا ہے تو امید ہوتی ہے، جب کسی کی نظروں کو محسوس کرتا ہے تو خوف آتا ہے. اب کلیئر ہوگی بات؟ امید اور خوف. اچھا، آپ کون سا رویہ زیادہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی دعوت دیتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے، کوئی پروگرام رکھواتے ہوئے، کسی پروگرام کی مینجمنٹ کرتے ہوئے، کیسے اپنے دل اور اپنے ذہن کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی طرف نظر لگائے ہوئے. پھر اللہ کی طرف نظریں لگانے والا سارا وقت کیا کرے گا؟ سرگوشیاں نہیں کرے گا. جاتے ہوئے دعائیں کرے گا، نوافل پڑھے گا. پھر بھی فکر لگی ہوگی کہ یا اللہ آپ میری مدد کرنا، آپ اسے قبول کر لینا، اپنے راستے پہ چلانا، آپ مجھے توفیق دینا، میری بات میں تاثیر پیدا کر دینا، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دینا، میری مشکلات کو دور کر دینا، میری ذات کو فتنہ نہ بنانا، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دینا. کتنی باتیں. امید. دعوت کا حسن کیا ہے؟ دیکھیں، احسان کی بات جو ہے نا ہر جگہ آئے گی. دعوت کا حسن کیا ہے؟ امید اور خوف. یہ بات تو رہے گی، ہر جگہ ہی رہے گی. دعوت کا حسن یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نظریں لگائے رکھے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو صرف امید کی حالت میں رکھنے سے سم ٹائمز انسان قابو میں نہیں رہتا، اس لیے اللہ کی نظروں کو محسوس کرے، پھر خوف آتا ہے. امید اور خوف کے بین بین دراصل کسی بھی کام کے اندر بیوٹی، حسن پیدا ہوتا ہے. اگر خوف زیادہ ہو گیا، ہائے پتہ نہیں کیسے ہوگا. کس کی طرف دیکھا؟ اپنی طرف. اور اپنی طرف دیکھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ شرک. اپنی طرف دیکھا، شرک کیا تو آپ اپنی فطرت سے نیچے آ گئے. اور اگر اللہ کی طرف دیکھا پھر آپ اپنی فطرت پر آ گئے. اور آپ نے اللہ کی طرف دیکھا تو آپ کے دل کے اندر امید پیدا ہو گئی. تو پھر کام کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سیرت پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ نظریں کس کی طرف لگانی ہے؟ نارملی انسان کس کی طرف لگاتا ہے؟ امی ہائے اجازت دیں گی کہ نہیں، ابو اجازت دیں گے کہ نہیں، ہسبینڈ اجازت دیں گے کہ نہیں، بچے. دیکھیں آپ کے امی ابو ہیں، میرے ماں بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں. لیکن اللہ کی طرف نظر لگانے سے آج کہاں ہوں؟ الحمدللہ کہ اللہ نے موقع عطا کیا. تو یہ زیادہ اچھی جگہ ہے یا ہر وقت یہ کہ کس کو کیا کھلا دوں، کس کو کیا پلا دوں؟ دونوں ہی کام تو کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت نہیں، ہر وقت وہ کام نہیں. یہ ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن لائف میں توازن کے لیے ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ضروری. تو کس کی طرف دیکھنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف.
अच्छा, फिर कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई भी काम करने लगता है तो उसकी नजर लोगों की तरफ लग जाती है। सारी जिंदगी आपने एक ही काम सीखा है, लोग क्या कहेंगे नहीं सीखा। सारी जिंदगी माओ ने, घर वालों ने शिर्क सिखाया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। या अब आप एहसान की स्टेज पे आ जाइए, या फिर क्या हो सकता है, रब क्या कहेगा, रब कैसा महसूस करेगा। अफजल क्या है, रब। ऊपर से एक बात अपने जहन में रखें, एहसान की स्टेज पर इंसान तब आता है, तब रह सकता है जब ऊपर रब हो, नीचे बंदा हो, दरमियान में कोई नहीं। कोई भी आया दरमियान में तो एहसान की स्टेज से उतर आएंगे, और इंसान उतर के कहाँ चला जाता है, फिर आगे कौन सा रास्ता होता है, जहन्नम का रास्ता, अल्लाह की नाराजगी का, गजब का रास्ता। 12वां पॉइंट हमने क्या देखा था, इबादत। इबादत किस तरह होती है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में किस चीज का इस्तेमाल होता है, जुबान और अज़ा और क़ल्ब। तो आज हम इनके बारे में पहले बात करेंगे। नंबर 1, क़ल्ब। बात दिल की हो, अज़ा की हो या जुबान की, तीनों में ये कदरें मुश्तरक है। आप अखलाक की तालिबात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुल्क सीखना है तो पहले ये जानना होगा कि इंसानी जिंदगी में क़ल्ब की क्या हैसियत है, इंसानी जिंदगी में उसके जवारिह अज़ा की क्या हैसियत है, उसकी जुबान की क्या हैसियत है। अगर देखें तो इन्हीं 3 का मजमुआ है ना बुनियादी तौर पर इंसान। या इंसान कम्युनिकेट करता है अपनी जुबान से, दिल में सोचता है, और अज़ा से कोई ना कोई अमल करता है। अच्छा, अगर हम देखें दिल को, दिल का एक रिश्ता है अल्लाह के साथ, एक दिल ही दिल में अंदर ही अंदर खुद अपने नफ्स के साथ रिश्ता है, होता है। एक दिल का रिश्ता होता है माल गैर, दूसरों के साथ, जितने भी इंसान हैं उनके साथ एक ताल्लुक होता है। इसकी कैटेगरी जरूर होती हैं, लेकिन 3 चीजें, 3 हालतें जरूर होती हैं। माल्लाह, अल्लाह के साथ, मान नफ्स, अपने नफ्स के साथ, माल गैर, दूसरों के साथ। चलिए अब आप अपने क़ल्ब की कैफियत बताइए, इस वक्त अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक है। हम जरा सीखना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं अल्लाह के साथ इस वक्त कैसा ताल्लुक है। माल्ला ही लग रहा है। अच्छा, माल्ला लग रहा है। अच्छा, और अपने अपने दिल की हालत बताएं। दिल की हालत पता कैसे बताएंगे कि जो कुछ आप सुन रहे हैं, ये सारी बातें सुनते हुए, देखते हुए, माहौल के अंदर रहते हुए अल्लाह से मैं क्या बातचीत कर रही हूँ, माल्ला। आप अगर इसे फिजिकली देखें ना, तो देखें एक चीज का होना अलग मानी रखता है। मिसाल के तौर पर ये माइक है, इसकी ये लीड है, लीड जा रही है, मेरा ख्याल है कि मिक्सर में जा रही है। एक इसका ताल्लुक है मिक्सर के साथ, ठीक है। मिक्सर से आगे एक ताल्लुक है कंप्यूटर के साथ, एक ताल्लुक है हार्ड डिस्क रिकॉर्डर के साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर फर्ज करें कि पीछे से मिक्सर ऑफ कर दें, फिर क्या होगा, आवाज आएगी नहीं। इसीलिए हमारी जिंदगियों से रब की आवाज नहीं आती, क्योंकि हम लीड उतार के ही रखते हैं। दिल ही दिल में जो रब के साथ बात करनी होती, बात नहीं करते। अपने दिल को संभालने के लिए हर वक्त रब से गुजारिशें नहीं करते। तो कल्ब की जो हालत है ये अल्लाह के ताल्लुक से बदलती है। तो हर एक चीज का रिश्ता जो सुना है, सुनते हुए भी रिश्ता एक अल्लाह के साथ, तो कल्ब का रिश्ता है ही ना।
دوسرا اپنے نفس کے ساتھ ہے، تیسرا دوسروں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، جس وقت ایک انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرتے ہوئے اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ رہتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ نفس کہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ نفس سے امارہ بن جاتا ہے، سرکش نفس. تبدیلی آ گئی نا، چینج آ رہی ہے. ایک بات سے چینج آتی ہے. ایک قول اگر جنت تک لے جا سکتا ہے تو ایک قول، ایک بات انسان کو جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے. اچھا آپ دیکھیں، عین اس وقت پر دل پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بات کے سنتے ہوئے، بات کے کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی کام انجام دیتے ہوئے انسان 3 حالتوں سے الگ نہیں رہ سکتا. 3 حالتیں ضرور ہی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک جگہ ہم نے کنیکشن جوڑ کے رکھا ہے، دوسری جگہ کے اتار دیے. لیکن ایک انسان چونکہ سوشل بینگ ہے، سوسائٹی کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کا دوسروں کے ساتھ رشتہ رہتا ہے. اس کا رشتہ رب کے ساتھ تو رہنا ہی ہے، اور اپنا وجود تو اپنا وجود ہے. بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھ نہیں آئی وہ سوال کریں. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ رشتہ کیسے رہتا ہے. دیکھیں، یہاں رہتے ہوئے کون سا لمحہ ہے جب ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ خالق کے ساتھ تو رشتہ ہے. دل تو اس کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے. رشتہ تو ہے، تعلق تو ہے. ہمارے بھول جانے سے، اگنور کر دینے سے وہ تعلق رہے گا تو صحیح، حیثیت بدل جائے گی تعلق. مثلا جس وقت ہم اللہ سے بات نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو پکار نہیں رہے ہوتے، ہمارا اللہ سے رشتہ کٹ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر عدیلہ مجھ سے بات کر رہی ہیں، اب آپ کی بھرپور توجہ اگر میری طرف ہے تو یہ رشتہ ہے مال غیر، دوسروں کے ساتھ ایک رشتہ ہے. لیکن میری بات سے اگر دل پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو مہان نفس بھی کھل کے سامنے آ گیا. اور اس دوران اگر نفس اور غیر کے ساتھ تو تعلق ہے، اللہ سے کچھ کہا ہی نہیں، یاد کیا نہیں، اللہ کی ذات کو ہم نے مس کر دیا نا، ہم نے مس کیا، ہم مس ہو گئے، ہم نے سوچا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہے، اور دل کے افعال درست نہیں ہے، رابطے درست نہیں ہے. دیکھیں جی، سادہ سی بات ہے، کنیکشن 3 ہے. 3 طرف انسان کے کنیکشن جڑے ہوئے رہتے ہیں. اگر ایک بھی کنیکشن اتر جائے تو انسان خراب ہو گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ اسے اپنی لائف کے ساتھ نہ دیکھیں کہ میری لائف میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں، کنیکشن جو اترے ہوئے، آپ اسے ریالٹی کے طور پر سمجھیں 3 طرف کنیکشن کی بات کو. ٹھیک اس طرح سے کہ یہ ہے دل. فرض کریں نا ایک انسان ہے، اس کے قلب کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا ایک تعلق جو ہے ایک طرف جڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ. اب یوں کر لیں، ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک طرف اس کا اپنے ساتھ تعلق ہے، ایک طرف اس کا تعلق ماحول کے ساتھ. روشنی نہیں آ رہی، مثلا یہ دیکھیں روشنی آ گئی نا، اس کا مطلب ہے مال غیر تعلق قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مال غیر کنیکشن ٹوٹ گیا. اینٹی سوشل بیہیویئر جن کا ہوتا ہے نا، اینٹی سوشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا بلب آف کر کے رکھتے ہیں، ہر بات کو اپنی ذات تک لمیٹڈ. ٹھیک، اب آپ دیکھیے یہ مال غیر کنیکشن ختم ہوا، اس کا پتہ لگا. اچھا اب آپ دیکھیں اس کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اگر پیچھے سے لائٹ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سورس سے اس کا رابطہ کٹ گیا. اگر اصل سورس سے رابطہ کٹ جائے، ہم اس کا معاشرے سے بھی صحیح رابطہ قائم نہیں کر سکتے، ارد گرد والوں سے، کیونکہ جہاں سے روشنی لینی ہے روشنی لی نہیں، نہ یہ خود روشن ہوا نہ کسی کو روشنی دی. اب کلیئر ہو گئی بات؟ لائٹ کون ہے؟ نور، اللہ. ہم نے یہیں سے بات شروع کی نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اللہ کے ساتھ جب ایک انسان کے دل کا رشتہ کٹتا ہے تو دل میں روشنی نہیں آتی. اللہ کے ساتھ رشتہ کٹتا ہے تو ماحول بھی روشن نہیں ہوتا، ماحول سے تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے. اب کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. مثال کے طور پر جیسے میں بات کر رہی ہوں
کہ اللہ سے رشتہ کٹتا ہے تو انسان کا نہ تو اپنے آپ سے رشتہ درست رہتا ہے نہ ماحول سے. فوراً ایک انسان کہے یا اللہ میرا رشتہ اپنے سے کٹنے نہ دینا, یا اللہ میرا رشتہ اپنے سے جوڑ کے رکھنا. کنیکشن جڑ گیا نا. اچھا پھر اگر دیکھا کہ اپنے آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے, یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا, تیرے سے تعلق کٹ گیا تو میں تو پھر نفس سے گائیڈ لائن لینا شروع کر دوں گی, اور یا اللہ مجھ سے میرے ماحول کو جہاں کہیں میں ہوں وہاں پر روشنیاں پھیلا دینا. یہ بات کلیئر ہو گئی کیسے انسان اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کی زندگی درست ہوتی ہے. تو یہ معاملہ کسی ایک بات کا نہیں ہے, ہر وقت یہی تعلق ہے بندے کا رب سے. ہر وقت کی دعائیں, ہر وقت کی یاد. اللہ کے ساتھ رشتہ کٹتا ہے تو پھر دو رشتے رہ جاتے ہیں, ایک اپنے نفس کے ساتھ اور ایک دوسروں کے ساتھ. روشنی نہیں آ رہی. اب دیکھیں یہ اگر پیچھے سے رشتہ کٹ گیا نا لائٹ سے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماورا کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا. اب ماورا کیا دل چاہتا ہے, اس کا کیا کریں؟ ہاں اس کو ہٹا دیں, اس کا کیا فائدہ, کیونکہ یہ بیکار ہو گیا. حالانکہ اس کا اپنے نفس کے ساتھ رشتہ ہے, جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ماحول کو بھی درست کر سکتا ہے, لیکن ماحول والے کہتے ہیں پھینک دو, الگ کر دو, کنیکشن ٹھیک کر دو. یا تو یہ پیچھے سے کنیکشن اس کا جڑ جائے یا پھر اسے اٹھا دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ایک لیمپ کو ہم اٹھا کے پیچھے رکھ دیتے ہیں, اور اگر اللہ ہمیں ہی پیچھے کر دے, ایسے اللہ انسانوں کو بدل دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس طرح ہم قوموں کو بدلتے رہتے ہیں, ایک کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں. آپ نے اپنے رب سے کیا بات کی اس دوران؟ بات کی ہے رب سے؟ ہاں جی کیا؟ ہاں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا, ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنا. ہاں جی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی اللہ مجھے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ دل بدل رہا ہے؟ کلیئر ہوتا ہے نا کہ دل کیسے بدلتا ہے, دل کے حالات کیسے بدلتے ہیں. دل کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے پھر دل بدلتا ہے. رشتہ کاٹ دیں آپ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ اس رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الخاسرون. خسارہ کیا ہے؟ ساری زندگی خراب ہو گئی. نقصان 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 میں نہیں رہنا. اللہ کا تعلق بچاتا ہے. تو بس سنتے ہوئے آپ دیکھیں آپ کی سماعت, آپ کی بصارت اور آپ کا دل کام آتا ہے ایسے اللہ کے تعلق سے کام کا ہو جاتا ہے. ہاں ایسے کام کا ہوتا ہے. یہ معاملہ انسان کے قلب کا ہے. اس کے اوپر ابھی مزید بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے. اور یہ معاملہ انسان کے جوارے کا بھی ہے. اعضاء جب عمل کریں, مثلا دیکھیں آپ نارملی غفلت کیسے ہوتی ہے, میں نے یہ پین اٹھایا, پتہ ہی نہیں پین اٹھایا, رکھ دیا. اگر انسان سوچے نا رکھ دیا. انسان کوئی بھی کام کرے, یہ دیکھیں پین اٹھاتے ہوئے کوئی بات ذہن میں آنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اعضاء کام کریں تب بھی ایک رشتہ اللہ سے جڑے, ایک رشتہ اپنے آپ کے ساتھ اور ایک ماحول کے ساتھ. جہاں کہیں آپ اخلاقی خرابیاں دیکھیں گے, جہاں کہیں ڈیلنگز میں خرابی ہوگی, وہاں پر یہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے, کنیکشنز نہیں جڑے ہوئے ہوتے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب ہم دیکھیں گے اب عدیلہ والا کوئسچن. عدیلہ کا نام عدل سے ہے نا. عدل کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دے دینا. اب آپ دیکھیے مثلا میں قلم اٹھاؤں لکھنے کے لیے اٹھاؤں, اب میں نے اٹھایا لکھنے کے لیے, اب کیا ہے مع اللہ رشتہ کیسے جڑنا چاہیے؟ کیا سوچا ہے ذہن میں؟ یا اللہ تیرے لیے اٹھایا, تیری بات لکھوں گی, یا اللہ تو میری اصلاح کر دینا, صحیح استعمال کرنے کی توفیق دینا. اب دیکھیں اس دوران انسان کا ذہن کچھ نہ کچھ تو سوچے گا نا. اب دیکھیں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کنسنٹریشن, توجہ. اور توجہ کس طرف ہے؟ اللہ, توجہ اللہ. اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, خلوص اس چیز سے انسان کے اندر آتا ہے. ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے.
اب آپ دیکھیے کہ اعضاء کا دوسرا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، مان نفس. تو اس قلم کو میں نے اٹھایا، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، استعمال کرتے ہوئے پھر مال اللہ رشتہ جوڑ دوں اللہ کے ساتھ. اور مال غیر کیا تعلق ہے؟ جہاں میں لکھوں میرے لکھنے کی وجہ سے نہ نوٹ بک خراب ہو، نہ ارد گرد والے تکلیف میں آئیں. پورا ماحول ہے نا مال غیر. غیر میں کیا ہوتا ہے؟ ساری انوائرمنٹ میں میرے اس فعل کی وجہ سے خرابی نہ آئے. خرابی کیسے آتی ہے؟ مثلا میں جو لکھنا چاہوں خرابی کیسے آئے گی؟ میں لکھوں، میں لکھتے لکھتے یہ پوائنٹر میں نے کھلا چھوڑا اور ایسے ہی پوائنٹر میں نے کسی کے کپڑوں پہ رکھ دیا، کسی کے اسکارف پہ رکھ دیا. خرابی آتی ہے؟ کیسے؟ ہاں، دوسروں کے کپڑے خراب ہو گئے. اور کیسے خرابی آتی ہے؟ بے دھیانی میں نا ٹک 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 ٹک. یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے. دیکھا نا آپ نے؟ یہ جو ہے نا مال غیر، یہ کنیکشن کا درست نہ ہونا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی پین اٹھانے کی مثال لی. فرض کریں کہ ایک انسان نے کوئی کام نہیں کرنا، ایسے ہی کسی چیز کو اٹھا کے کھیلتا رہا، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا. لاشعوری عمل ہے نا. تو لاشعوری عمل کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ انسان کا قلب درست نہیں ہے، قلبی معاملات درست نہیں، اعضاء ٹھیک کام نہیں کر رہے، اعضاء کو صحیح میسج نہیں مل رہا. اگر میسج ٹھیک ملے گا تو اعضاء درست کام کریں گے. تھوڑا سا ان کا آپس میں تعلق پتہ لگ رہا ہے، قلب کا جوارح کے ساتھ یعنی اعضاء کے ساتھ. اب ہم زبان کی بات دیکھیں گے. عمل اللسان، زبان کا عمل. زبان سے انسان جو کچھ بولتا ہے، ایک تعلق زبان کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق اپنی جان کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق غیر کے ساتھ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران اسے ریکارڈ کرنے کو موجود ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، زبان کا تو ایک ہی عمل نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ زبان بات کر رہی ہے. جس وقت انسان کی زبان بات کرتی ہے، اگر تو بات ٹھیک ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اگر بات ٹھیک نہیں ہو رہی تو یقیناً رشتہ کٹا ہوا ہوگا. لیکن بات کرتے ہوئے ایک انسان اگر اللہ سے کنیکشن جوڑ کے رکھے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک انسان جو لفظ بھی نکالے گا سوچ سمجھ کے نکالے گا. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات تو میں نے ایسے ہی کر دی تھی؟ اچھا، کتنی باتیں ہوتی ایسے ہی کر دیتا ہے انسان، اور سارے لوگ کہتے ہیں واقعی اس نے ایسے ہی کر دی تھی. کوئی کسی کو نہیں پکڑتا کہ تم نے ایسے ہی کیوں کر دی بات. تو عمل اللسان جو ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے. اس کی وجہ سے دوسروں پر اچھے اثرات بھی بہت مرتب ہو سکتے ہیں، برے بھی. مثلا زبان کھلی تانا دے دیا. مال غیر تعلق صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہو گیا. زبان کھلی غیبت کر دی. زبان کھلی اور زبان نے کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں عین اس موقع پہ دل میں کیا ہوتا ہے. اس نے کام ہی ایسا کیا کہ مجھے زبان ایسے کھولنی پڑی. اپنے آپ کو افاق پہ لے آتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اپنے نفس سے فیصلہ لیا. آپ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو کاٹ بیٹھے، تیشہ چلا دیا. زبان کا ایک تعلق عین بات کرتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو زبان غلط نہیں بول سکتی. زبان کا تعلق نفس کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے؟ مان نفس. یہ بات سمجھنے والی ہے. مان نفس کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. زبان وہی کچھ کہتی ہے نا جو ہمارے اندر ہوتا ہے. ایک انسان کس طرح سے غلط بات کر کے اپنے دل پہ داغ لگواتا جاتا ہے، نفس پہ دبے داغ. ایک تو یہ کام ہے. پھر زبان کا درست استعمال کر کے قلب کو کیسے بچاتا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، دل بچتا ہے، لیکن ہم زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں ایک کنیکشن پیچھے ہمارے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ. وہی کچھ بولتے ہیں جیسا پیچھے کنیکشن لگا ہوا ہے. تو یہ تین چیزوں کی بات سمجھ آ گئی. ہم نے آج کیا تین چیزیں دیکھی ہیں نئی؟ قلب، اعضاء کا عمل اور زبان کا عمل. تو تینوں میں تین کون سی چیزیں خاص ہیں؟
माल्लाह मा नफ्स और माल गैर। ये क्लियर हो गई बातें? आज गौर करेंगे मजीद, फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या सीखा आज? क्या पता चला? फायदा हुआ या नुकसान हो गया? फायदा। क्या सीखा? क्या फायदा हुआ? अल्लाह से ताल्लुक बनाने का पता चला है, कब किस वक्त कैसे बनाना है पता चला, और प्रैक्टिस भी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस की है? हाँ जी। मुझे काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम था कंसंट्रेशन का, यानी अल्लाह की तरफ कंसंट्रेशन होती भी थी तो इर्द गिर्द तवज्जो चली जाती थी, और ऐसा बहुत होता था इवन अल्लाह की तरफ सोचते सोचते मैं कहीं और ही निकल जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी प्रैक्टिस करने से, और एक चीज़ लिटरली पढ़ लें लिख लें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी वैसे जहन में अगर आए तो वो और होता है, लेकिन अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिली। आज आपका जो काम है ना वो ये है कि आपने इंशाल्लाह अपनी अपनी नोटबुक पे ना ये जो कनेक्शंस है ना इसकी कोई पिक्टोरियल फॉर्म बनानी है, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना ले। एक तो दिल का अमल है, उसके कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन जुड़ते हैं, जैसे आप अपने लिए सेटिंग करेंगे ना वैसी सेटिंग माइंड में होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से एक आज़ा का अमल है और एक जुबान का अमल है, बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। हाँ जी मैडम, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि अभी आंसुओं का सिलसिला जो है, मैं इसी के सिलसिले में बात करनी थी कि ऐसा होता है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक कुछ लम्हात के लिए बनता है तो बहुत आंसू आते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैफियत आंसुओं वाली ख़त्म होती है तो दिल ऐसे खाली फील होता है कुछ ही लम्हात के बाद। इंसान एक वक्त में अल्लाह की ज़ात को बहुत ज़्यादा फील करता है, आँख आंसू बहाती है, फिर ऐसा होता है कि वो कैफियत नहीं रहती। ये एक नेचुरल बात है, लेकिन खाली हो जाने की जो कैफियत है उसकी वजाहत ज़रूर करना चाहूँगी। जिस वक्त इंसान के आंसू बहते हैं वो मौका होता है एक इंसान अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस ताल्लुक से फ़ायदा हासिल कर ले। ऐन उस मौके पर दुआएं, ऐन उस मौके पर ज़्यादा अज़कार करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत होती है, अल्लाह से मांगने की। झोली भरेंगे तो भर जाएगी, और अगर आप बहते पानी को यूं ही बहने देंगे तो आपके बर्तन में, आपके ज़र्फ़ में कुछ भी नहीं आएगा। बहते पानियों के किनारे किनारे नहीं खड़े होना, उससे अपने ज़र्फ़ को भर लेना है, ले लेना है। हिस्सा इंसान इसी तरह ले सकता है कि ऐन उस मौके पर अल्लाह को कसरत से याद करे, ऐन उस मौके पर इंसान अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, ऐन उस मौके पर अल्लाह से ज़्यादा मदद मांगे, ज़्यादा दुआएं करे। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कैफियत एक सी नहीं रहती, तो अगर हमेशा ही ईमान की ऐसी कैफियत रहे तो फरिश्ते मुसाफा करें। हदीस याद आती, फरिश्ते जो हैं आगे बढ़कर सलाम करें, तो हमेशा एक जैसी कैफियत नहीं रहती। ये तो सच है, लेकिन खाली हो जाने का अमल जो है उसके लिए पीछे जाके आप खुद सोचें कि आपने या तो आंसू बहाए होंगे किसी टेम्परेरी जज्बे से, यानी कनेक्शन फिट नहीं बैठा, वक्ती तौर पर एक तासुर था जिसमें शऊर का दखल कम था, मुतासिर होने की बात ज्यादा थी जिसकी वजह से आंसू बहे। तो आप तासुर को शऊरी बना लें, रीजनिंग करें, दुआएं करें, इंशाअल्लाह कैफियत में फ़र्क आएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे को नींद आ गई और कौन कौन जागता रहा? नहीं बाजी, नींद तो नहीं आई, जागते हैं हम जे। कैसा बोरिंग था? नहीं बाजी नहीं।
क्या सीखा फिर? हम्म, बहुत कुछ सीखने को था बस। ये कुरान में जो पढ़ के आए हैं ऊपर ऊपर से देख के, उसकी वजाहत है अब, जी है कि नहीं? जी बाजी, हाँ जी। लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोग इसे बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं फिर कि नहीं ये तो नहीं, पता नहीं क्या है। नहीं नहीं बाजी, ये तो बहुत लेकिन ये बहुत देखिए, बहुत हमें इतनी सीखने की बात है, हाँ जी, इनमें, हाँ जी, सीखने की बहुत बात बस बहुत वाकई, ज्यादा सीखने की बातें हैं इनमें, हाँ जी। अल्लाह के साथ हाँ ताल्लुक जी हम जी। कहते हैं खालिस करना है, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। हाँ जी, बहुत हम सारे हमारे वो काम है जो हम कर नहीं सकते, तो हमें पता चला कि जी जी, हाँ जी, करने चाहिए, हाँ जी। यानी कि ताल्लुक का हमारा तीन तीन तरफ होता है ना हर वक्त। जी जी। कौन सा? अल्लाह ए, से, मा अल्लाह, मा नफ्स, मा गैर, माल गैर। माल गैर, माल गैर में सारे लोग दूसरे, हाँ बड़े जी, इधर दूसरों उधर के इधर साथ। उधर। माल नफ्स की है, नफ्स, अपने साथ, अपने नफ्स के अपने साथ। साथ अपने मेरा नफ्स, दिल ये नहीं हाँ जी चाहता, हाँ मैं जी। बोर हो रही हूँ। अपने आप में, अपने आप में जो हम करते हैं, हाँ जी। अपने आप में करते रहना है ना। जी, मुझे मैं नहीं करना, मुझे मुझे नहीं हाँ, चाहिए, मुझे मुझे नहीं, नहीं ये सुनना, मुझे जी नहीं ये मुझे करना। नहीं, मैंने नहीं करना ऐसे, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे कुछ ये भी, हाँ सारी जी। चीजें माल नफ्स है। मेरा जी नफ्स चाहता ही नहीं है इनको करना, क्योंकि हम आजकल क्या कहते हैं, रंग रंगीनियों के शौकीन है ना, जी मुसलमान भी। जी क्योंकि जो बहुत खूब धूमधाम के साथ हो और जो सब कुछ पूरी प्रिपेयर हुआ हुआ हो, हम उन चीजों को देखते हैं ना। फिर ये हमने देखा कि जब हम काम कर रहे होते हैं, खासकर जब हमने किसी को बुलाया होता है, हमने किसी की फॉर एग्जाम्पल हम किसी का अफ्तारी कराएं, मेरा तो ख्याल है कोई भी ना किसी की कराए। वो इसलिए कि वो औरतों का ही वो सारा उस दिन चला जाता है टाइम। जी, हाँ जी वो अपनी तरफ से सोचती हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया है, लेकिन उनकी अपनी नमाजें भी जा तो कजा, या बिल्कुल लेट, क्योंकि हांडी रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, उनको दम देने के जी, हाँ जी। बगैर जा नहीं सकते इधर उधर। कुकिंग अब सारा मेहमान सारा दिन अभी आने लगे हैं, टाइम नहीं हाँ रह जी, गया ना। कुकिंग में गुजरता सारा दिन, हाँ जी। सारा दिन फिर वो सुबह से शाम तक कुकिंग करती है, और अगर किसी के अप एंड डाउन हो जाए तो हाँ फिर जी क्या होगा? यानी कि आने वाले ना आए, फॉर एग्जाम्पल जा लेट आ गए, हाँ जी। खाना ठंडा हो गया, तो फिर उसकी हालत क्या होती? उसे सारी तकलीफें सुबह से शाम तक की याद आ रही होती है। मैंने जे किया और वो आए नहीं, जा वो लेट आए, उन्हें कदर नहीं आई। मैं कभी भी नहीं अब करूंगी, इतनी अब मैं मेहनत की दोबारा मैंने, कभी नहीं किसी को इतना बुलाऊंगी, टाइम क्योंकि कोई लगाया, कदर ये नहीं किया, करता। वो किया, हाँ जी। ऐसा होता है, हाँ जी, होता है, हमारे साथ होता हुआ। होता है ऐसे, हाँ जी बाजी। हाँ कि जी इंसान और आने वाला भूल भी सकता है, हाँ जी। भूल भी सकता है। नहीं बाजी, मैं अपनी बात बताऊं कि जब भी मैं अपनी भाभी के फैमिली को इनवाइट करती हूँ किसी बात पे ना, आप पता नहीं की, अब तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, लेकिन वो अक्सर लेट आते थे। मैं मुझे इतना गुस्सा होता था कि क्या बात है, तो टाइम पे आ नहीं सकती, मेरे साथ कोई हेल्प करा दें, आकर, या कोई काम करवा दें। बस मैंने सब कुछ कर भी लिया, फिर भी अभी तक पहुँचे नहीं। मेरी अम्मी ज़िंदा होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो कहती कोई बात नहीं, जब कर लिया तो फिर क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे होता है कि आए नहीं टाइम पे ना, तो ऐसे करती है, मेरी अपनी फैमिली करती है ऐसे, अक्सर मेरी भाभी की फैमिली करती है ऐसे ना। वो कभी भी अल्लाह टाइम ताला पे नहीं हम आते। सबको हिदायत अता फरमाए। रिफत को पता है, रिफत आपको पता है ना। हाँ जी ये चीजें समझने वाली है ना। नहीं, हाँ मैंने जी। तो रमजान में बस मना कर दिया, मैं कि रमजान में पूरा साल खाते क्योंकि ही आते ही हैं ये बस। देखो, वो ही दावत, मैं ये कहूंगी कि वही दावत जो है ना, आप उन लोगों को दें जिनके पास कुछ नहीं है। जी जे भरों को क्या भरना है, सभी के जी पास है इतना कि वो खा ले, और बल्कि उनको भी मौका मिले कि भी वो अपने अपने नफ्स का सोच सके ना। और इतना सादा सादा खाना खा के अपने इंसान रोजा खोल सकता है। मेरे हस्बैंड जिस दिन के गए हैं, मैंने कोई फ्राई चीज नहीं बनाई। वो फ्राई चीज ही लाते थे, वो मस्जिद में भी ले आते थे, इधर आके रोजा खोलते थे, तो वो कभी समोसे, कभी पकौड़े, कभी। हाँ जी, फ्राइज ज्यादा चलते हैं ना तो रमजान में तो। मेरे बच्चे लेकिन इतने सालों के यही कहते थे कि अम्मी क्यों इसके बगैर नहीं जा सकते कि मस्जिद में। तो वो कहते थे नहीं, क्योंकि वो मस्जिद में पसंद करते हैं ये चीजें। हम्म, हम्म, तो ये हमारे ऊपर है
अब मैं सीधा सादा कभी नूडल बना ली उनमें वेजिटेबल डाल दी, कभी कुछ, मैंने ये चीजें खा खा के रोजे रख रही हूँ यानी कि इफ्तारी कर रही हूँ, आसानी वाला जो वैसे भी जल्दी जल्दी। आपका पेट ठीक रहता है ना ऐसी चीजों से, फ्राई चीजों से पेट नहीं ड- खराब होता। हाँ जी, तो वो फिर तो ये मैदे की कसर है वो तो बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर खाया जाए तो फिर हश्र होता है। जी तो एक तो अपनी सेहतें खराब करनी, जी, दूसरा अपना टाइम जाया करना, टाइम जाया करना। हाँ तीसरी जी, अपनी इबादत का हर्ज ना, इबादत का भी तो हर्ज होता है ना, जी होता है। हाँ जी, इबादत का भी बहुत बड़ा हर्ज होता है हमारा, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, नमाज तो हमने पढ़ ही ली है, चलो कोई लेट ही पढ़ ली, कुरान का आज सुपारा नहीं पढ़ा गया तो कोई बात नहीं, कल को पढ़ लूंगी मैं। मेरे तो गर्मी लग रही काफी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। तुसी बंद कर दो, आप ही ला लेंगे आगे, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाजी। हाँ जी, मस्जिद का हमने ना थोड़ा सा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना होता है, तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि बस करें, इतना ही बहुत है? ये कर इतना ले ही बहुत बाजी, कर ले। हाँ जी, थोड़ा सा कर ले। हाँ जी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि ये है कि थोड़ा सा ना हम अपने जी अभी तो अपने आप को हम दौरा कुरान 2 घंटे करते थे, 2 से भी ज्यादा कभी। हाँ जी, तो अभी 1 घंटा ही हुआ ना, 1 घंटा 10 मिनट 11 मिनट समथिंग। आपदा बहन अस्सलाम आप नहीं वालेकुम बोले कुछ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप बाजी आज क्या लग था? रहे मुझे वो तो कल दौरा कुरान खत्म हो गया था, आज क्या किया आपने? मुझे तो पता ही नहीं था। वो मैं मेरे अभी अब बयान किया। कोशिश करूंगी मैं यूट्यूब के ऊपर भेज दूं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि हम दोबारा जो भी नहीं आई वो सुन सकती हूँ। अच्छा आपने जो हमने कुरान में सीखा है ना, जी, कुरान में तो ऊपर ऊपर से गए हैं, अब उसका कि हम कैसे समझे उसको और अपने दिलों को बदल लेना, उसके अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह ताला ना। तो बाजी ये जो आप दुआएं भेज रहे हैं मुझसे बड़ी नहीं हो रही, पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, अच्छा। पता नहीं जी। हम्म, अच्छा मैं कोशिश करूंगी आपको वैसे भी भेजने की, तो उस पे ठीक मैं है इसलिए भेजती थी कि लोग जो है और भी सुन लेते हैं ना, जी उसका फायदा हो हाँ जी। जी, जाए। उस पे नहीं बड़ी होती ना वो। उसके बड़ी मैं फिर कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे, आपको ना हाँ जी, यूट्यूब पे होती है ना वो बड़ी नहीं होती। हाँ जी, वैसे मैं भेज दूं, कोशिश करूंगी आपको ना। तो इंशाल्लाह ताला जी बस जी दूसरी बहनों से पूछ लें। सॉरी मैंने ऐसे कह दिया कि कर लें, पता नहीं वो दूसरी बहनें क्या माइंड ना करें क्या ख्याल समझे। है सबका, जल्दी जल्दी बोल पड़े इससे पहले कि मैं उससे शुरू करूं। बाजी मैंने तो अभी अभी शुरू किया, मुझे तो होता कि मैं सुनूं कुछ। आपदा बहन से पूछ लें जब, आधा और बहन तो किसी बोल ही नहीं रहे। से पता नहीं। सिस्टर मैं बोली जा रही हूँ, मेरा वो कहना माइक ऑफ। माइक ऑफ था। मैं तो बोली जा पहले रही ही हूँ। सोच रही थी मेरे माइक ऑफ होगा। मेरा भी ऑफ ठीक था, है, मैंने जब बाजी ठीक ने। है, एक्सक्यूज मान लेते हैं। नहीं नहीं सच्ची वाकई सिस्टर था, मैं हाँ समझी जी, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही, जब आपने कहा ना आवाज बोल ही नहीं रही तो फिर मैंने चेक किया। ठीक है, हाँ नहीं आप बोल ही नहीं रहे थे ना। हाँ हाँ जी, नहीं मैं हम बोल चले जा रही रहे थी, थे। मैं तो बोल रही थी आप ऐसे भी होता है। ज्यादा मैं ही बोल रही थी। हाँ नहीं जी, नहीं के साथ बोल रही थी, लेकिन वो माइक ऑफ था ना। जी कहीं तो पता नहीं चलता ना। हाँ जी, हाँ जी, तो देखा ही नहीं मैंने। मैंने सोचा कि माइक ऑफ होगा, पता नहीं मैं क्या, मैंने कहने में लगी थी आप तो माइक तो नहीं ऑफ। हाँ नहीं जब आपने कहा फिर मैंने कहा मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो आवाज क्यों नहीं जा रही। उसको पता ही नहीं चल रहा नहीं सुनने वालों को। हाँ, तो क्या ख्याल है आपदा बहन? मैं तो कह रही शुरू करें, जल्दी करें, पर जुमे की अजान हो जानी ना, फिर भी हाँ शुरू जी, कर देना। ठीक है, हाँ जी चलो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे जी मिल वही जाए। मैंने कहा कि थोड़ा सा खा लेते हैं ना, अभी हाँ टाइम जी तो, हाँ जी, मुझे टाइम तो है नहीं। बुक जो नहीं कि मुझे मिल 4 जाए। ਵਜ गए तो जुमा तक हो गया ਉੱਥੇ। कितने? नहीं है कहाँ हुआ जुमा। ये पाकिस्तान से नहीं, अभी अच्छा सभी बहनें इधर से ही। अच्छा अच्छा पाकिस्तान वाली नहीं आज कोई भी आई, सारे एक ना हमारा बना हुआ है वो रूटीन के, हम सिर्फ अब तोरा कुरान ही देखेंगे ना, जी ये है। इसलिए अपनी बहनें ने ना कल खत्म हो गया बस। हाँ जी,
हाँ जी, अब खत्म हो गया, अब क्या करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम देखते हैं कि हमेशा ही रह नहीं जाता है बाजी जी हमारा बहुत कुछ। बहुत अच्छा था, हाँ जी बहुत, हाँ जी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोशिश कर रही थी ढूंढने की, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। सुबह ढूंढा था और अब फिर चला गया कहीं। मैंने भेजी हुई है, किसी के पास है मोहम्मद अरबी में? वो चेक करने लगी थी सिस्टर। क्योंकि मेरे पास थी, लेकिन अब मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रही ना। वो इतना पीछे चला जाता ना सिस्टर, फिर हाँ जो बहुत बहुत पहले पे आपने भेजी थी, काफी हाँ दिन जी। पहले, हाँ जी। अच्छा, आप फिर सेव नहीं करते कहीं फिर? नहीं। नहीं करते, लेकिन सिस्टर वहां पे रहने हाँ देते। जी, जो जो आज हमने पढ़ा सीखा, वो बताएं आप दफे है ना। आता नहीं पेजेस। नहीं। आपदा बहन, आपको कैसा लगा ये? सिस्टर इन बहुत इन सीरीज को जारी रखें कि नहीं? नहीं सिस्टर जारी रखे हैं। जारी रखें बाजी, हाँ जी। ये जा 29 है। हाँ जी। क्योंकि इससे हमारा जो ना असल में ताल्लुक बिल्ला जो है, अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ेगा। क्योंकि हम सीखते क्या है असल में ना, जी क्योंकि हम हर वक्त ऊपर ऊपर से जाते रहते हैं, दौरे कुरान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता फिर जी। ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ना अल्लाह सुब्हाना मैं तो तआला। लिख भी रही थी, थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा भी, जल्दी जल्दी में मैं भी क्वेश्चन नोट्स बना रही थी, वैसे तो जल्दी प्रॉपर जल्दी होना से चाहिए। लिखा, हाँ जी, क्वेश्चन इतने लिख नहीं सकी, हाँ जी। अल्लाह सुब्हाना तआला सुनकर इंशाल्लाह लिख हमारा। लूंगा, हाँ जी। बल्कि देखो, आज हमने जो तकवा की हालत देखी हाँ जी। है ना, आपने नफ्स की हालत देखी है, तो किस तरह हम्म। हमने देखी है ना, वो तो नहीं जो हम हमेशा करते हैं फिर ना। नहीं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की अता फरमाए। ठीक है, आमीन। मैं ना अभी वैसे ही खोल के पढ़ लेती हूँ कि वो मुझे नहीं मिल रहा है अभी ना। टाइम वैसे भी हो रहा है जल्दी जल्दी। मैं इंशाल्लाह ताला इसको सीरा सीरा हम खात्मे सीरतुल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। ठीक। ये एक एक पेज हम पढ़ेंगे तो इसका भी हमें हो जाएगा। मुझे ये था कि जहाँ पे कोई पिक्चर आ जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। रिकॉर्ड तो करने की जरूरत नहीं है इसे, है ना, नहीं। क्योंकि आप लोग जरूरी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शॉर्टकट में है, ठीक है, जी ठीक क्योंकि है। मुझे बुक नहीं मिली, वो बुक जो है वो सामने नजर नहीं आ रही। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो जमजम जो है, जमजम कुएं की खुदाई जो थी, जी वहां पे क्या हुआ था। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू होता है इससे ना, कि जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे परदादे थे उनसे। सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमजम की खुदाई में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे किदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोड़ता है ना जाके लिंक अदनान से। जी अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मदर था, मदर दाद के साथ मदर। मदर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। कुरैश असी कहने ना, कुरैश का कबीला, जी वो कुरैश बिन मालिक। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए, इनको फहर बिन मालिक या कुरैश बिन मालिक कहते थे। कुरैश की औलाद बहुत हुई, यानी कि उनके जाहिर है उनकी इतनी इतनी बीवियां होती थी, तो औलादें भी उतनी। आज से कल का थोड़ा है कि 2 ही बहुत हैं या एक ही बहुत है। वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, औलादें यानी कि वो उस औरत से शादी करो जो औलाद ज्यादा पैदा करने वाली है, बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली है। तो उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में फिर फैल गई, क्योंकि औलाद इतनी थी। उनकी औलाद से कुस्सा कुस्सा ने इक्तदार हासिल किया। कुस्सा भी एक आदमी का नाम था, उन्हीं की औलाद में से कुस्सा के आगे 3 बेटे हुए।
उनमें से एक अब्द मनाफ थे, उनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। और हाशिम कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, सही है ना? हाँ जी जी हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। ये ना शॉर्टकट में है, वरना ये बहुत खूबसूरती से हम हमदे अरबी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे भाजी इंशाल्लाह। ये सेंड हो सकता है? मैं पता नहीं, मैं देखूंगी। तो हमदे जे ना कहाँ गया? तो जब हाशिम ने मदीना की एक सरदार की बेटी से शादी की, उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। आपको पता है शीबा कौन थे? क्योंकि जे अरबों के तो नाम, असली नाम तो गायब है, इनके लक़ब भी आते हैं। तो शीबा जो था उनका, जनी को उनका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा हुआ ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया, यानी कि आपके परदादा वफात पा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके भाई मुतल्लब, हम अब्दुल मुतलब कहते हैं ना, हाँ जी तो जी ये अरबी में होता है मुतल्लब। उनके भाई मुतल्लब मक्का के हाकिम हुए। अब हाशिम के भाई मुतल्लब थे और हाशिम फौत हो गए। वो हुआ क्या कि मुतल्लब जो थे वो हाकिम मुकर्रर हो गए, सरदार बन गए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा, क्योंकि जाहिर है माँ उधर ही थी। तो हाशिम फौत हो गए तो बेटा एक ही था शीबा, वो उधर परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है, यानी मेरा भतीजा जवान हो गया है, वो क्या उसने किया कि तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीने गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है, यानी कि गुलाम खरीद के लेके आया है। क्योंकि गुलाम उस वक्त आम ही खरीदे जाते थे, लोग लाते थे। तो लोगों ने सोचा कि गुलाम खरीद के लाए हैं। उधर ही शादी की थी उससे, औरत से हाशिम ने, तो उधर ही जनी के जाहिर है कि हामला हुई और वो फौत हो गए जल्दी ही ना। तो लोगों को पता भी नहीं था कि उसका कोई बेटा है। तो जब वो मक्के पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि ये कोई नौजवान जो है उनका गुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। मतलब कौन सा का मुतल्लब अब्दुल मुतलब, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸ਼ੀਬਾ ਵਾ, ठीक है? अच्छा ਸ਼ੀਬਾ ਜਿਹੜੇ ठीक है तेरे। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुतल्लब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। कि अब्द का मतलब क्या होता है? गुलाम, है ना? तो गुलाम कहना शुरू कर दिया कि ये अब्दुल मुतल्लब जो है ये मुतल्लब का गुलाम है। तो उन्हें कहना शुरू कर दिया अब्दुल मुतल्लब। अब उनका नाम शीबा गायब हो गया। तो अब उनसे कौन सी औलादें पैदा हुई? उनके जहाँ अब्दुल मुतल्लब के जहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आ गए हैं ना। चचा ताए ताए हैं सारे, लेकिन हाँ अरबी में वो सारे उनको चचा उम्मी कहते हैं ना। चाचा ताया एक ही होता है, जैसे इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, बड़ा वजह छोटा ऐसे। तो अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, दरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। ये उनके बेटे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया थे सारे। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यानी कि अब्दुल्ला की औलाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुतल्लब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतल्लब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को, इस यानी कि वो कौन सा कुआं था? वो ही जो जमजम का था, और वो बंद कर दिया गया था, बंद हो गया हुआ था, किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ है। इतना बेआबाद हो गया हुआ था कुआं। तो उन्हें ख्वाब में दिखाया गया कि वो कुआं खोदेंगे, ठीक है? तो जनी इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं को खोदने का हुक्म हुआ उन्हें। उस कबीला को कबीला जुरहम के सरदार मदाद ने पाट दिया था, यानी उसको बंद कर दिया था। कबीला जुरहम के जुरहम, आपको पता है कि कबीला जुरहम कौन थे?
सिस्टर पढ़ा दो। जी वो वही थे जो हजरत हाजरा ने उनको पनाह दी थी कि आप पानी पी हाँ सकते हैं, पानी उनको पानी भेज क्योंकि अकेले माँ बेटा ही थे वहां पे जमजम के जी कुएं के जी पास जी ना। जी जी तो वो काफिले हम्म, गुजरे वहां से, उन्होंने इजाजत चाही कि हम बैठ जाए इधर पानी लेने बैठ जाए, तो उन्होंने इजाजत दी उन्हें ना। तो जी ये वो ही थे कबीला अच्छा जुरहम, तो वो वहां पे आके आबाद हो गए थे। एक मक्का का शुरुआत हो गई, जी बस्ती बानी शुरू हो गई मक्के की। तो उन्होंने उन्हीं के सरदार थे एक, जिन्होंने उसको बंद कर दिया हुआ था फिर बाद में। तो फिर क्या हुआ कि उसने जब जनी उसको बंद कर दिया तो कुआं बेआबाद हो गया हुआ था। अब्दुल्ला यानी कि जुरहम के सरदार मुदाद ने पाट दिया था। कबीला जुरहम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार थे, क्योंकि सरदारी संभाल ली जाके। देखो वो कहते नहीं, आग लेने आए और घर वाले बन बैठी, हाँ जी वो हिसाब हो गया उनका। तो वो घर वाले बन बैठे, सरदार बन बैठे। तो बैतुल्ला के निगरान भी वही थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुदाद बिन अमर जो था, वो अच्छा आदमी था, उनमें से कोई अच्छा भी आदमी निकला। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ, वो करते रहे लगातार। जब मुदाद ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता दिखाई दिया, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला कर दिया। यानी कि उसने छोड़ दिया कौम को। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें, जरें वगैरह खाना काबा से निकाल कर, पहले खाना काबा के अंदर रखी हुई थी, ठीक है, ये सारा सामान खाना काबा के अंदर था। तो क्योंकि ये सरदार था, उसके पास ताकत थी, उसने जाने से पहले ये काम किया कि तलवारें, दौलत, तमाम मालो दौलत जो जरें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी, क्योंकि कुआं इतना था, और उसमें डाल दी सारी चीजें, और मट्टी से उसको पाट दिया, जिनके बंद कर दिया। बंद कर दी कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, पानी उधर से खुश्क हो चुका था पहले, तो इसलिए वो बेआबाद एक किस्म का ना, क्योंकि उन्होंने आबाद नहीं रखा ना उसे। अब उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं जो है बंद पड़ा रहा। इसके बाद खजा ने बनु जुरहम के को वहां से मार भगाया, यानी कि वो एक और पैदा हो गया कोई कबीला ज्यादा ताकतवर। उन्होंने बनु जुरहम जे तो जब कोई कौम अपने लिए तबाही का खुद रास्ता निकालती है ना, तो वो फिर उनको ढाने वाले भी आ जाते हैं। तो उन्होंने उनको खत्म कर दिया, मार भगाया। बनु खजा और कुस्सा की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुस्सा ज्यादा है, कौन है पीछे से आ रहे हैं। कुआं बंद रहा जहां तक कि कुस्सा के बाद अब्दुल मुतल्लब का जमाना आ गया, यानी कि कुस्सा के बाद हुकूमत किसको मिली? अब्दुल मुतल्लब को। उन्होंने जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। उन्होंने ख्वाब में ये देखा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुतल्लब ने बताया, मैं हिजरे अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो, यानी कि ये कुएं का एक और नाम, तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो, ये इसका एक और नाम। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गए। तीसरी रात आपने मैं बिस्तर पर सो रहा था, क्योंकि ये हरम के पास से पहले, और आप बिस्तर पर सो रहे थे। ये फिर वो शख्स ख्वाब में आया, उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर फिर चला गया। उससे अगली रात फिर मैं बिस्तर पर सो रहा था, यानी कि ये कि ऐसे ही नहीं किया, बल्कि 4 दिन लगातार उनको ख्वाब आया था और वही आदमी आ रहा था बार बार। तो वो बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? क्योंकि वो तो सदियों पहले बंद हो चुका था, तो लोगों को तो भूल भी चुका था। इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यही कहा था ना, जम जम, यानी ठहर जा, ठहर ठहर, पानी बहने लगा ना, तो उन्होंने कह दिया था जम जम,
तो इसका उनकी जुबान में मतलब था ठहर ठहर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, फरमाते थे कि यानी कि रहमत अल्लाह ताला करे हमारी माँ हाजरा पर। कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ कि अगर उन्होंने जमजम ना कहा होता तो आज हर तरफ कुएं निकल जाते, हर तरफ यानी कि उस पानी को बहा ले जाते, क्योंकि अब भी बह नहीं सकता ना। बहुत कोशिशें की हैं सऊदी अरब वालों ने कि दूसरे शहरों में पानी चला जाए, नहीं जाता, उधर ही रहता है बस उसी जगह पे, क्योंकि उन्होंने जमजम कहा था। अल्लाह ताला ने उनके लिए उधर ही मुकर्रर कर दिया बस ना। तो अब इन्हें पता चल गया कि जमजम को खोदने का हुक्म हो रहा है। तो उन्होंने आदमी ने जो आ रहा था बार बार, उसने बताया जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों यानी कि उन्होंने तो खुश्क कर दिया था ना, कोशिश नहीं की ना। तो उसने ये भी बताया जो हाजियों के बड़े बड़े मजमू को सिराब करता है, यानी कि ये काम हुआ करता था पहले। अब्दुल मुतल्लब कहते हैं मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह पर है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है। ये हाल था जमजम के कुएं का उन्होंने किया हुआ, गंदगी डालते थे और खून पड़ा। और कौवा हारिस के साथ वहां गए उस वक्त उनके यहाँ एक ही लड़का था। ये मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि एक क्यों था, क्योंकि नीचे जाके और भी आते हैं। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। समझ सकते हैं आप? जब बुत परस्त कोई कौम हो जाती है तो उसे अपने अशार सारे भूल जाते हैं। जी दोनों तरफ जमजम के कुएं के दोनों तरफ बुत रखे हुए थे उन्होंने। तो वो जाहिर है कि बुतों पर जो भी डालते वो गंदगी, तो वो वहां डालते होंगे ना। हाँ जी। वहां जो भी। एक मिनट, कोई बहन आ रही है या क्यों नहीं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हाँ मैं इसे खत्म कर ही दूँ, रिकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है, कहाँ गया? तो अब्दुल मुतल्लब ने कुदाल लिए, यानी कि वहां पे पहुंच गए। देखा खून पड़ा हुआ है, ठुंगे मार रहे हैं कौवा, और गंदगी पड़ी है। उस जगह के दोनों तरफ बुत थे, और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतल्लब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त क्रैश वहां आ गए, कि बाकी आ गए ना। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम तुम्हें जहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारी इन दो बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो, यानी कि हमारे बुतों का हर्ज होगा यहाँ पे, जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुतल्लब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहता हूँ, इसलिए कि मुझे इस काम करने का हुक्म दिया गया है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। याद रहे कि ये अल्लाह को पुकारने वाली कौम थी, अल्लाह को मानते थे लेकिन एक नहीं मानते थे। और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है, यानी ये तो मिल गया इस्माइल का कुआं। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं भी तलाश कर लिया है तो उनके पास आ गए और कहने लगे अब्दुल मुतल्लब अल्लाह की कसम ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है। पहले खोदने नहीं दे रहे थे, अब हक जता रहे, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुतल्लब ने कहा मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मेरे अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतल्लब बोले किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद बिन हज़ैम की काहन का पता है ना आपको, कहना औरत से फैसला कराना मंजूर कर लिया। ये कहना मुल्क शाम के भलाई इलाके में रहती थी। अब्दुल मुतल्लब और दूसरे क्रैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुतल्लब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी। याद है ये सारे भाई थे ना, अब्दुल मनाफ। जी तो ये सारे जो इकट्ठे हैं। एक मिनट, कोई बहन आ रही है तो उसको बेचारी कर नहीं पा रही। ठीक है,
तो ये सारे इकट्ठे गए, जबकि दीगर कबाइल क्रैश की भी एक जमात उनके साथ गई। इस जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था, वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यानी इतने लोग गए थे लेकिन अब पानी खत्म हो गया, बेहाल होने लगे, पानी नहीं मिल हो रहा था। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, जहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया कि जनी अब हम बचेंगे नहीं। उन्होंने क्रैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, क्योंकि कुछ लेके गए थे साथ में, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुतल्लब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पांवों के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। अब ये दूसरा चश्मा था सऊदी अरेबिया में, कभी इसका नहीं जिक्र सुना ना? नहीं बच्चे नहीं। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुतल्लब सवारी से उतरे। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीजे भर लिए। अब उन्होंने देखा कि ये साफ है पानी पीने का कि नहीं। जी नहीं ना देखा, नहीं क्योंकि देखा। पानी मुयस्सर आया, जिंदगियां बचानी थी, पी लिया। अब उन्होंने क्रैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। जिन्होंने पानी ज्यादा दिया नहीं था उन्होंने कहा तुम भी पानी पी लो। अब वो भी आ गए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुतल्लब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अभी गए नहीं थे कान्हा के पास, ये तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी नहीं झगड़ेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, यानी पानी पिला दिया है, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी। इसलिए यहीं से वापस चलो, यानी अब हम आगे कान्हा के पास नहीं जाना चाहते। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतल्लब पर मेहरबान है। उन्हें पता चल गया कि ये हम में से खास है एक। तो अब वापस आ गए सारे, है ना। पता चल गया कि सरदारी इनको मिलने वाली है, अल्लाह मेहरबान है इन पर, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और कान्हा के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुतल्लब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी ही खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जर्रे निकल आई। याद है किसने फेंकी थी, हाँ है ना? जी वो जो फेंक के चला गया था बंद हाँ करके। जी इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। जी ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच फिर आ गया क्योंकि दुनिया लालची है। उन्होंने अब्दुल मुतल्लब से कहा, अब्दुल मुतल्लब इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो वो कहने लगे, उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतल्लब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए, यानी मैंने इसके लिए कोशिश की है। आओ 500 के तीरों से कुर्रा डाल लें। आपको पता है अल्लाह ताला ने 500 के तीरे हराम करार दिए हैं। वो मैं बताऊंगी, वो 5 से डालकर ना ऐसे तीरों के ऊपर नाम लेकर ऐसे डालते, तो वो कुछ यानी कि किस किस तरफ डालते थे वो मैं बाद में बता सकती हूँ, क्योंकि वो जो आसमान की तरफ डालते थे शायद और कुछ बुतों की तरफ डालते, तो वो इस तरह वो करते थे कि जो बुत पर पड़ गया वो शायद ठीक था और जो किसी और जगह पे गिर गया वो नहीं ठीक था। इस तरह वो करते थे जिसका भी नाम निकल आए। तो जो उन्होंने 500 के तीरों से अब शुरू कर लिया काम करना, कुर्रा डाला। तो कुर्रा डाल सकते हैं हम, लेकिन 500 के तीरों से नहीं। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, यानी नाम काबे का लिखा गया। 2 अब्दुल मुतल्लब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के पांसा फेंका गया। तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। अच्छा तलवारें और जर्रें अब्दुल मुतल्लब के नाम निकली, क्योंकि उन्होंने जंगें भी करनी थी अब। और क्रैश के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले, उन्हें कुछ नहीं मिला। अल्लाह ताला ने फैसला फिर कर दिया उसके हक। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुतल्लब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। वो सोने का दरवाजा है, हाँ जी देखते हैं, पता है ना हम सबको। हाँ जी हाँ जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतल्लब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा।
अब जब के कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, क्योंकि मन्नत मानी थी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना कि मन्नत माने ना, जी जब मान ले तो उसको पूरी करना होता है। फिर अगर वो शिरक की ना हो तो अपनी मन्नत पूरी करो। हुक्म दिया गया ख्वाब में कि अपनी मन्नत पूरी करो, यानी आप बेटे को जिबा करो, यानी एक बेटे को जिबा करो। तो ये फिर इस तरह यानी कि ये जमजम का तो खत्म हो गया। जी अब आ गया नंबर 2 के खत्म कर दे, जहां पे जमजम पे खत्म कर दे, या अब नंबर 2 सुनना है कि इसको जिबा किया गया था? ये सुना दे सिस्टर। अच्छा ठीक है। इस तरह सीरते खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंटों की कुर्बानी के किस्से में अब हम देखते हैं अब्दुल मुतल्लब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। उन्हें कुआं मिल गया, चीजें मिल गई, भूल भाल गए, सब खत्म हो गया काम, याद भी नहीं रहा कि मैंने कोई मन्नत मानी थी। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा जिबा करके, मेंढा का पता है ना आप लोगों को हाँ जी ना, जिबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, अच्छा मैं ये दुम्बा जो होता है, अच्छा अच्छा फिर ख्वाब राम राम कहते हैं उसको, बड़ा सादरा होता है ना। फिर ख्वाब आया उससे बड़ी पेश करो, यानी ये तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़ी। उन्होंने ज्यादा बेटे को कहा था। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे बड़ी पेश करो, तो उन्होंने बैल को जिबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे बड़ी पेश करो, उन्होंने ऊंट जिबा कर दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो, उन्होंने पूछा इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी एक को जिबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी। तो अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया, सब के सर झुक गए क्योंकि कोई भी नहीं कुर्बान होना चाहता था। कौन खुद को जिबा करवाता? आखिर अब्दुल मुतल्लब अब्दुल्ला बोले, जो सबसे छोटे और बहुत खूबसूरत हसीन नौजवान थे, अब्बा जान आप मुझे जिबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुतल्लब को इन्हीं से थे। वैसे भी छोटे से ज्यादा मोहब्बत होती है ना माँ बाप को, लिहाजा उन्होंने कुर्रा अंदाजी के करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुर्रा डाला गया, अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें जिबा करने के लिए नीचे लटा दिया। आगे जाकर कौन जिबा होते थे हुए? नहीं, इससे पहले कौन जिबा हुए थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम के यही हाल हुआ था। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही पहले उन्हें काम पहले किया उनको हाँ जी था ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ। तो क्या हुआ कि उनको छुरी अब गर्दन पे रखी है, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा, छुरी गर्दन पर रखी, नीचे लटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास ने जब्त ना हो सका अब्बास से। अब्बास कौन से थे? चचा थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, भाई को जिबा होते वो देख नहीं सके, फौरन आगे बढ़े। वैसे भी कहा जाता है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। तो फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे, इतने बड़े नहीं थे भाई भी, अब्दुल्ला अब्बास भी। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा, इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गई, यानी कि बाप खींच रहा था जिबा करने के लिए और बेटा खींच रहा था उसे बचाने के लिए। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे थे अब्दुल्ला के चेहरे पर। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए, यानी ये जब खींचातानी हो रही थी तो दूसरे कबीले के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को जिबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। जाहिर है माँ का बेटा गया तो उसको तो बाकी कोई भी नहीं याद रहेगा। आपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दे, यानी कुछ और कुर्बान कर दे इसके नाम पर। अब सवाल ये पैदा हुआ कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के यानी एक कागज पर लिखकर 10 ऊंट 10 ऊंट लिखे जाए और दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। फिर 10 ऊंट वाली पर्ची ना निकले तो 20 बढ़ा देना, 20 वाली ना निकले तो 30 बढ़ा देना, यानी बढ़ाते गए। ऊंट होगा था ना सिस्टर। तो जब तक वो 100 ऊंट
हो गया। अब्दुल मुतल्लब ने ऐसा ही किया, 10 10 10 10 बढ़ाते गए, हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता। आखिर में क्या हुआ कि जब अब्दुल मुतल्लब ने अब्दुल्ला का नाम एक बार और 100 ऊंट दूसरी की तरफ डाले, तो उन्होंने देखा कि कुर्रा जो है वो 100 ऊंटों के नाम निकल आए, के नाम निकल पर्ची उनके नाम निकल आई। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुतल्लब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। कर ली है। उन्होंने देखो अल्लाह ताला किस तरह गाइड करता है इंसानों को ना। जी उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट ज़िबा किए और किसी को खाने से ना रोका, यानी जो कोई आता खाता उसे। याद रहे कि वो उम्रा हज करने वाले भी आते थे अभी भी। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उन्हें खाया। इमाम इतो जोहरी कुर्बानी स्टार्ट हुई सी, हैं? इतो कुर्बानी ਇਹਦੀ ਊਂਟ ਦੀ स्टार्ट हुई सी। नहीं, ऊंट की कुर्बानी जहाँ से नहीं, ऊंट तो पहले भी कुर्बानी देते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, उससे भी बल्कि पीछे पहले से। लेकिन ये कुर्बानी जो थी 100 ऊंटों के, एक किसी जान का फिदिया 100 ऊंट कुर्बान ये हुए थे पहले। वो इससे पहले 100 नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि अब्दुल मुतल्लब ने ये फिर सोच लिया कि ये 100 ऊंट जो है ये कुर्बानी होगी। तो जाहिर है कि फिर सबको उन्होंने जिबा यानी कि किया और फिर खास कुर्बानी थी ये। खास कुर्बानी हो गई ये। तो इससे पहले अब्दुल मुतल्लब, यानी अब्दुल मुतल्लब पहले आदमी थे, इमाम ज़ुहरी कहते हैं अब्दुल मुतल्लब पहले आदमी थे जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। और ये अल्लाह का ही तो हुक्म था फिर, जी यानी कि अल्लाह के ही हुक्म पर हुआ अल्लाह ना। के तो हुक्म से अल्लाह ने हुआ। तो माना उस बात को, कुर्बानी को, फिदिये को, तो फिर ये हुआ। तो फिदिया ये फिर 100 ऊंट, अब भी 100 ऊंट ही है जो उनकी कीमत है। ठीक है, उम्मते मुसलिमा में अब भी जो फिदिया है किसी की जान का, जो यही है। अच्छा तो दियत जिसे कहा जाता है, दियत, वो हम पढ़ के आए ना, दियत देना। जी हाँ जी हाँ जी। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी उसको उसको इनकार नहीं किया। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आने से पहले का जमाना था जब 100 ऊंट हुए। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम 100 ऊंट नहीं देंगे, ये बल्कि दुरुस्त करार दिया कि ठीक है 100 ऊंट ही होंगे। यही फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दो ज़बीहों यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हजरत अब्दुल्ला क्रैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारे की मानद था। क्रैश की बहुत सी लड़कियां इनसे शादी करना चाहती थी, मगर अब्दुल्ला की शादी आमना रजी अल्लाह ताला आमना से हुई। हजरत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन जोहरा की बेटी थी। शादी के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन, वर्का बिन नौफल क्रैश के बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से इनकी बहन ने सुन रखा था, यानी कि क्योंकि वर्का बिन नौफल जो थे उन्होंने ही तस्दीक की थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की, क्योंकि वो उस वक्त ईसाई मजहब पे, यानी कि उस जमाने के मुसलमान थे, वो ईसाई थे। तौरात और इंजील का मुतालिया कर रखा था उन्होंने। तो बहन बहन ने सुन रखा था भाई से ना कि आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबुव्वत का नूर चमकता होगा। यूं ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। तो उसने कहा, यानी कि जब उसके बाद ये जहन में आई, उसने सोचा हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं, यानी कि वो शर्फ जे लेना चाहती थी आखिरी नबी की वालदा होने का। तो अगर तुम मुझसे तो शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ऊंट दूंगी कि जितने तुम्हारी जान के बदले में जिबा किए गए थे। अब्दुल्ला से कहने लगी ना कि जितने जान बचाने के, यानी कि तुम्हें उतने ऊंट मिल जाएंगे वापस।
उस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं, यानी कि मैं इस तरह नहीं शादी किसी से कर सकता। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थी, घराना भी बहुत अफजल था, आला था। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे हाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, यानी कि अल्लाह की पनाह में दे देना बच्चे को, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर उस बच्चे को का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद आया है, और जमीन में आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद आया है, और कुरान उनकी किताब और कुरान उनकी किताब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिलेगा। अब दाया नहाया की ये रवायत है। एक रवायत के मुताबिक कुरैश ने उनसे कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो, इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे उस नूर से। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है, कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। अब दाया नहाया, यानी कि रिपीट हो रही है दो डिफरेंट रवायात से। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो आमना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, क्योंकि उन्होंने बिशारत दी थी ना कि एक नबी आने वाला है, और बिशारत और खुशखबरी हूँ। और जब मैं अपनी वालदा के शिकम में था तो उन्होंने देखा कि गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, हलीमा सादिया कौन है? जो जिन्होंने उनको दूध पिलाया था ना। दाइया। हाँ जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या फरमाया था कि मेरे इस बेटे की शान निराली है, ये मेरे पेट में था तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है, सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उसका नाम मुबारक अहमद, नाम बरक मुबारक क्या होगा? अहमद होगा। मैं उनकी बिशारत देने वाला हूँ। जब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। साबका कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई थी कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा, यानी कि वो यतीम पैदा होंगे। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे, उस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी नानकों के जहाँ बनु निजार के जहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु निजार से थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन किया गया, कहीं कहाँ? मदीने में।
تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبداللہ کو عبد المطلب کو اچھا پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچتے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ اتنا ہم رکھتے ہیں جی انشاءاللہ۔ ہاں جی یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ہمارے لیے، ایک مجھے ریکارڈنگ بند کرنے دیجیے۔